Hello everyone, my name is Ritesh Singla. Today in this lecture, we are going to discuss about epsilon and epsilon neighborhood. This is the fourth lecture of our series core course real analysis. In the previous lectures, we have discussed about first countable and under addition and multiplication, identity under addition which is 0 and under multiplication which is 1, inverse under addition which is minus a and under multiplication which is 1 upon a, and distributive property, right? Then we also talked about the order properties of R, which says every real number is either positive or equal to 0 or less than 0. Then we have seen the definition of modulus of a real number A, which says mod of A is equal to A if A is positive, 0 if A is equal to 0, and minus A if A is less than 0. And some of the properties of modulus, out of which the important is mod A is less than equal to C if and only if minus C is less than equal to A is less than equal to C, right? We have all we have seen all of these things in our previous lecture, so that's why I'm going a little fast here. And after that, we have proved a very important inequality, namely triangle inequality, which says if A comma B is any real number, then mod of A plus B is less than equal to mod A plus mod B, right? So all of these things we have discussed in our previous lectures. If you haven't seen them, you can watch it in our YouTube playlist, namely real analysis. There you will find them. So let us start our today's lecture. So before proceeding to the epsilon and epsilon neighborhood, there was one corollary which was not discussed in the previous lecture. It is the corollary of triangle inequality. So let us see that first. So corollary, it says if A and B are two real numbers, then modulus of mod A minus mod B is less than equal to mod of A minus B. So the proof is really easy. I have left it as an exercise in the previous lecture, but we will see it now. So we will just use the definition of modulus, definition and one property of modulus plus triangle inequality. See, triangle inequality is one of the most important inequality of our real analysis course. I have already mentioned it. So you have to be very careful with it. So let A comma B belongs to R be any real number
then modulus of a is equal to modulus of a plus 0, which is equal to a minus b plus b. So here we can apply triangle inequality. So it will be less than equal to mod a minus b plus mod b, right? So we took a minus b as a tilde, b is equal to b tilde. So then mod of a tilde plus b tilde is less than equal to mod of a tilde plus mod of b tilde, right? So this is the triangle inequality. So from here we got mod of a minus mod of b is less than equal to mod of a minus b. Make it equation number 1. Fine. Now there was nothing special about a and b there. We can interchange their position, right? This implies mod of b minus mod of a is less than equal to mod b minus a, right? Because there was not any order. A and b were random real numbers, so I interchanged their positions, right? But mod a is always less than equal to mod minus a. So mod of b minus a is equal to mod of minus of b minus a, which is equal to mod of a minus b, right? So this implies, make it 2. From one and 2, we got mod of a minus b, that is less than equal to mod a minus mod b is equal to mod of a minus b, right? So this is from 1, this is from 2, right? So we are seeing another property that mod of a is less than equal to c if and only if prime c is less than equal to a is less than equal to c. So we can use it here. Take it as considered as c, and this as a, which implies mod of mod a minus mod b is less than equal to mod of a minus b, which is the theorem. फाइन. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस को बस स्मार्टली यूज किया. फाइन. नाउ लेट अस कम टू आवर टुडेस टॉपिक एप्सिलॉन. ये अपने आप में कोई एक टॉपिक नहीं है, ये बस एक रियल नंबर है जो अभी हम देखेंगे. एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नेबरहुड of a point or of a real number a. ठीक है. We denote epsilon by this, some sort of cursive e. Okay. So let us start this. So the definition for epsilon is a positive real number. Now you might ask कि इतना क्या स्पेशल है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए? पॉजिटिव रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, बट ये एक नोटेशन हम यूज कर रहे हैं कि एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है. अब इसके ऊपर हम भी एक थ्योरम देखेंगे जो जस्ट नेक्स्ट थ्योरम है. उससे हमें समझ में आएगा कि ठीक है कि इतना क्यों हम इसको मैथ्स देने लग रहे हैं. जो हमारी पूरी रियल एनालिसिस है वो एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी और एक जो भी नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है. मोर और लेस आपको हर रिजल्ट में, हर क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्यूशन पूरा लिखना है तो इन्हीं दो के साथ अगर आपने अच्छे से खेल लिया कि आप एप्सिलॉन को समझ गए कि उसको कैसे स्मार्टली यूज करना है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहाँ यूज करनी है, तो आप ये लगा लीजिए रियल एनालिसिस के साथ 50% जंग जीत चुके हैं. इतनी ही है रियल एनालिसिस. बार बार आपको यही करना होगा कि किसी चीज को एप्सिलॉन से छोटा कर दो, किसी चीज के ऊपर ए प्लस बी को मोड ए प्लस मोड बी लिख दो. स्मार्ट मैनिपुलेशन, यही सब कुछ है. तो अब देखते हैं इसके ऊपर जो मेन थ्योरम थी. यस, वन मोर थिंग. अगर आप बीएससी के अंदर है या फिर मास्टर्स है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मिथ क्रिएट हो जाता है कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन 1. बट ये कहीं से भी ट्रू नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि एप्सिलॉन इज लेस देन 1.
हम कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन को कभी 1 भी ले लेते हैं, 3/2 भी ले लेते हैं, कभी कभी जब हमें किसी चीज का काउंटर एग्जांपल चाहिए होता है स्पेशली। ओके, तो एप्सिलॉन के बारे में याद रखिए कि एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन पॉजिटिव है। ऑल्दो बहुत सी जगह आपको ये चीज फ्रेज, कुछ फ्रेजेस मिलेंगे आपको, लेट मी राइट दैट। एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, या फिर गोस टू जीरो, एप्सिलॉन इज क्लोज टू जीरो। इस टाइप के आपको फ्रेजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इस टाइप के फ्रेजेस हमारे कहाँ यूज होते हैं, जब हम लिमिट वगैरह की बात करते हैं कि ठीक है कि हर एप्सिलॉन के लिए चीज ट्रू है एक्सेट्रा, उस टाइम आपको इस टाइप के फ्रेजेस देखने को मिल सकते हैं। बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि एप्सिलॉन 0 और 1 के बीच में है। बस एप्सिलॉन के बारे में आप कितना जानते हैं कि वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। उस थ्योरम को अगर आप देखोगे तो एक हंसी आने वाली थ्योरम, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि हम बीयर एनालिसिस में आगे हैं, बैचलर्स के कोर्स में एटलीस्ट आ चुके हैं, और हम प्रूव कर रहे हैं कि ए का स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, या 1 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप की चाइल्डिश चीजें हम प्रूव कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। इसी टाइप का ये थ्योरम है, अगर स्टेटमेंट समझ जाएंगे तो आप। तो ये क्या कह रही है, इफ ए इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब a belongs to R and a is greater than equal to 0। ठीक है, a is a non-negative real number and a is less than epsilon for all epsilon positive। कि आप कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, a उससे छोटा है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर स्टेटमेंट को इतना ही पढ़े हम, तो हमें क्या समझ में आता है कि a कोई नंबर है, रियल नंबर, जो 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं ले लूंगा तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो क्या समझ में आ रहा है इसमें हमें, जस्ट सो क्या गिवन है इसके अंदर कि अगर ए कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा हूं तो ए उससे छोटा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बेसिकली ए 0 होना चाहिए, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। राइट, यही हमें प्रूव करना है कि भाई हमने क्या कहा कि कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर था ए। अब नॉन नेगेटिव का मतलब ए या तो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, ए उससे छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए को 0 ही होना पड़ेगा। ओके, सो प्रूफ देख लेते हैं इसका। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका भी। Here A belongs to R and A is non-negative. Let, if possible, A is strictly greater than 0। मान लिया कि A strictly 0 से बड़ा है। This implies A upon 2 होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। भी अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो उसको डिवाइड 2 कर दोगे तब भी 0 से बड़ा है। टेक एप्सिलॉन टू बी A upon 2। एप्सिलॉन जो था हमारा वो A upon 2 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था कि A एप्सिलॉन छोटा है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो एप्सिलॉन A/2 लिया, वो पॉजिटिव है। राइट, दिस इंप्लाइज ए जो एप्सिलॉन से छोटा था वो किससे छोटा हो गया, बेसिकली A/2 से। क्या ये पॉसिबल है कि A/2 से छोटा हो जाए? A/2 से तो छोटा नहीं हो सकता है, बस हेंस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स। इतनी सी कॉन्ट्रडिक्शन थी। अब कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो किस पे आती है, assumption के ऊपर। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग।
assumption wrong है, इसका क्या मतलब हुआ? a 0 से बड़ा नहीं है। अब a 0 से बड़ा नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? a 0 ही है, क्योंकि गिवन क्या था कि या तो 0 है या 0 से बड़ा है। प्रूव कर दिया कि 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो a को 0 ही होना पड़ेगा। इतनी सी थ्योरम थी। अब इस थ्योरम का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम, भी ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये तो किसी आप 11th 12th क्लास के बच्चे से पूछते तब भी वो बता देता कि कोई 11th 12th तो बहुत बड़ी क्लासेज है, आप 6th 7th के बच्चे से पूछते तब भी बता देता कि भी कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़े हर नंबर से वो छोटा है, तो वो नंबर क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। एक छोटी सी झलक ही देखेंगे सिग्निफिकेंस की, क्योंकि हमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी अभी पढ़ना है, तो वहां पे चीजें वापस आएगी। आपको याद होगा इस टाइप की चीज आपने देखी होगी, लिमिट x गोज टू 2 1/x+2। इसमें आप क्या करते हो? 1/2+2 विच इज 1/4, राइट? इस टाइप की चीजें आप करते थे। अब जो गैप है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। और आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? नॉन नेगेटिव। तो ये उसी टाइप की थ्योरम सा दिख रहा है। ये इसको ए मान लो, ए है जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और हर एप्सिलॉन से छोटा है, तो उससे हमें क्या पता चला था कि जो ए है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ x-2 को 0 होना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ समथिंग इज 0, इसका क्या मतलब हुआ? नंबर इज 0, x-2 को 0 होना पड़ेगा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? x को 2 होना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो ये एक वेग सी डेफिनेशन है लिमिट की, कि लिमिट क्या कहती है। लिमिट से हमें पता चलता है ना, हम कभी कभी बातों में भी कहते हैं भी अपने हद में रहो, अपने लिमिट में रहो। तो लिमिट क्या भी, जो हमने पॉइंट डिस्क्राइब किया है उसके आसपास ही रहो तुम, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो उस पॉइंट के मतलब 2 के आप आसपास ही रहो। अब आसपास कितने आसपास? बिल्कुल पास रहो, तभी तो हम कहेंगे बिल्कुल उस लिमिट के पास पहुंच जाओ तुम, तो बिल्कुल पास रहो। बिल्कुल पास का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं एप्सिलॉन, तो 2 और x के बीच में जो गैप है वो उस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए हमेशा, तभी मैं कहूंगा बिल्कुल पास है। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए आगे जो अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये आपके लिए बिल्कुल चाइल्ड प्ले की तरह हो जाएगा। यही है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का क्या सिग्निफिकेंस आया कि x और 2 के बीच में जो गैप था वो हमने क्या कहा? बहुत ज्यादा कम है। कितना कम है कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो ये जो गैप था वो उस रियल नंबर से छोटा है। तो उससे पिछले वाले थ्योरम से हमें क्या पता चला कि इन दोनों नंबर को क्या होना पड़ेगा? सेम ही होना पड़ेगा, यानी कि लिमिट में आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, ये एक वेग सा सिग्निफिकेंस है। ऑफ कोर्स आप हमेशा लिमिट में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डाल दू लिमिट x गोज टू 2, x-2/x² - 4, तो अगर आप 2 और 2 डालोगे तो 0/0 आएगा, जो डिफाइंड नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x-2 × x+2, x-2 से x-2 कैंसिल, विच इज x+2। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो और आंसर 1/4 लेके आ सकते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनके अंदर, ये भी वो सिंपल सिंपल चीजें हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं हो रहा। बिकॉज आपने सीखा होगा कि 0 और 0 ऐसे कटते नहीं है, राइट? वो मजाक में पहले करते थे ना कि यहाँ पे 2 × 0 है, वहां पे 4 × 0 है, 0 से 0 काट दिया, 2 = 4 हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, 0 से 0 कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड। अब एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? सबसे पहले हम वैसे ही देहाती वाली चीजों में सीखते हैं। ये ऐसे है हमारा एक बंदा है, इसका नेबरहुड क्या होएगा? इसके इस साइड के कुछ लोग,
थोड़ा गलत बंदा बन गया। और इसके इस साइड के कुछ लोग, राइट, यही होता है हमारे नेबरहुड भी। अगर आपसे पूछते हैं आपका नेबरहुड क्या है, नेबरहुड मतलब पड़ोस, आपका पड़ोस क्या है, तो आप कहोगे मेरे दाएं के कुछ लोगों को गिन लोगे और बाएं के कुछ लोगों को गिन लोगे या फिर कुछ घर को गिन लोगे, वो आपका पड़ोस है। अब सबके पड़ोस की डेफिनेशन अलग अलग है। कोई तो कहता है कि मेरे घर से बराबर वाले घर जो एक के घर है वही मेरा पड़ोस है। कोई कहता है मेरे घर से 5 घर एक तरफ और 2 घर एक तरफ वो मेरा पड़ोस है। तो सबके पड़ोस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने समझा नेबरहुड यानी कि पड़ोस। अब उस पड़ोस के ऊपर कितने पड़ोसी देखने हैं हमें, वो हो गया हमारा एप्सिलॉन। कि एक रेंज दे दी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे घर से मैं तो 10,000 घर तक जो घर है उन सबको मेरा पड़ोस गिनूंगा। गिन सकते हो क्योंकि वो एक किस्म से पड़ोसी है आपका। लेकिन एक वो होता है ना, उसके अंदर भी लिमिट भी, इतने ही लोगों को देखना है, इतने ही घर तक देखना है। तो वो जो लिमिट डिसाइड होती है वो एप्सिलॉन बताता है आपको। तो एप्सिलॉन नेबरहुड की भी इतना ही नेबरहुड ढूंढना है आपको, एक घर या 2 घर तक का ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना। ठीक है, समझ में आया नेबरहुड का क्या मतलब है। एप्सिलॉन नेबरहुड, पहले हमने नेबरहुड देखा, एक बंदा उसके आसपास के घर, कितने घर, वो एप्सिलॉन है आपका। अब ये सब हम, ये सारी चीजें किस में डाल दो, आप रियल लाइन में डाल दो। एक रियल नंबर है, फॉर रियल नंबर ए, चलो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये 0 मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2, ये -1, ये -2। अब मैं 1 के पड़ोसी देखूं, तो 1 के पड़ोसी कोई तो अपनी सेंस में कहेगा 0 2 है सर, ये 0 लेफ्ट में आ रहा है और 2 राइट में आ रहा है। लेकिन कोई भाई माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हैं, उसने क्या कहा, नहीं सर यहाँ पे 3/2 और 1/2 है, मैं तो यहाँ तक के पड़ोसी लूंगा। फिर कोई कहता है कि नहीं सर हम तो 1 + 1/4 से 5/4 और 3/4 ये लेंगे, तो ये भी तो एक पड़ोसी है। एक सेकंड, किसी के लिए तो ये पड़ोस है, किसी के लिए ये नेबरहुड हो जाएगा और किसी के लिए ये नेबरहुड हो जाएगा, राइट। इसी के अंदर हमारी डेफिनेशन छुपी हुई है। फॉर एनी रियल नंबर ए, एप्सिलॉन नेबरहुड, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर ए। इसमें क्या आएंगे, वो सारे एक्स सच दैट a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। यानी कि a के एप्सिलॉन प्लस चल जाओ और a में एप्सिलॉन काट दो, तो ये जो गैप बच गया आपका, ये आपका नेबरहुड है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू x सच दैट माइनस एप्सिलॉन x माइनस a प्लस एप्सिलॉन, राइट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू x सच दैट मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। फाइन, इसको एक नोटेशन दे दी है v एप्सिलॉन a का एप्सिलॉन नेबरहुड v एप्सिलॉन a, ये नोटेशन है। इतनी सी आपकी नेबरहुड की डेफिनेशन थी, समझ में आया, क्लियर है। तो इसको अब हम एक सेट थ्योरी में भी देख चुके हैं भी, इन सेट नोटेशन हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो यही था कि हम एप्सिलॉन को समझ लेंगे और एप्सिलॉन नेबरहुड को समझ लेंगे। आप एक बार इस लेक्चर को 2 से 3 बार वापस देख लीजिएगा, ताकि जब हम अगली क्लासेस के अंदर एप्सिलॉन की या एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करें या फिर उस थ्योरम की बात करें कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है इन पर्टिकुलर, और वो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो वो 0 होगा। ये 3 चीजों को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, लिखेंगे, समझ जाएंगे, तो आगे वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, बस एक रिकॉल डाल देते हैं हमने आज क्या क्या सीखा है। एक हमने क्रोलरी देखी कि मोड ऑफ मोड ए माइनस मोड बी वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए माइनस बी। दूसरा हमने एप्सिलॉन की डेफिनेशन देखी
फिर उसके ऊपर एक थ्योरम देखी। तीसरा हमने, ओके थ्योरम भी लिख देते हैं कि ए अगर नॉन नेगेटिव है, ए लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो ए को 0 होना पड़ेगा। और तीसरा हमने एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में देखा। ठीक है, तो विद दिस हम हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और जो लेक्चर्स है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ क्या है वो। आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स, MATHSWITHSINGLA। टेलीग्राम पे आप इसे सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी के सभी फ्यूचर अपडेट्स मिल जाएंगे वहाँ पे कि लेक्चर कब हो रहा है, और लेक्चर की वीडियोस लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस आप कान खोल के इनको सुनते रहिए, समझते रहिए। लिखा हो तो आपको वैसे भी मिल ही जाएगा, और किताबों में भी सब लिखा ही हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ यू फाइंड अवर चैनल हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।